ओके, स्टूडेंट चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग अभी देखने हैं मास्टर रिलेशनशिप। व्हाट इज मीन बाय द मास्टर रिलेशनशिप? ओके, आपको सब मैं दे देता हूँ, इसकी थ्योरी दे दूंगा, टेंशन नहीं आपको। ओके बेटा, मेरे फ़ोन लड़के आज क्या हो रहा है, एक लड़का जो नहीं है। हेलो, क्या नाम है बेटा? चालू है ना बैच? आपको भेजा है ना मैंने? कौन से अप्रैल वाले ग्रुप में हो ना? ओह माय गॉड, अरे यार भेजा नहीं क्या 2 मिनट के लिए? इसलिए लड़के रुके तो फिर अब भी भेजते हैं। Listen here, this is called as a master relationship. Hello. Yes, sir. Okay. These are the two relationships. These are the two objects. Okay. The one object is called as a staff detail. Okay. Oh, staff detail. Detail. Staff detail, and that is called as a parent object. And second one is called as a student detail. Student detail. This is called as your child object. Child object. Okay. This is your child object. Okay. The staff detail is your parent object, and the student detail is your child object. Okay. We connected these two objects by using the master relationship. Okay. By using the master relationship. So you always remember one thing. Okay. If you connect the relationship between the two objects, so always you process the relationship through the child object only. Okay. Only 5% use the parent. Otherwise, in a relationship, 95% all the operation can be performed through the child object. ये याद रखना दिमाग के अंदर, क्योंकि आपको इंटरव्यू में से घुमाते हैं आप लोगों को, तो कभी भी याद रखिएगा आप लोग एक चीज़ सिंपल वे से। डिम्पल एंड द पायल मैं आपको समझा दूंगा बाद में, आप सिर्फ बैठिए। ओके, वेरी गुड। हाँ, यस, you remember one thing that in a relationship, always in a lookup relationship, self relationship, hierarchy relationship, master relationship, any type of relationship you can perform the self force. So that time you remember one thing that always maximum work in a relationship through the child object only. Means a 95% operation can be performed through the child object only. Only 5% performance from parent to child, and only one topic in a relationship, that is name is called as roll up summary. It is always processed from parent to child, but all other operation in a relationship they perform through the child to parent. याद रखना, कभी भी बहुत घुमा के पूछते हैं, लेकिन ये सेंटेंस दो याद रखना। ओके, मैक्सिमम टाइम यू प्रोसेस in a relationship through a child object only. Is it clear? Only in 1 or 5% means in a roll-up summary, only you can work through parent to child in a master relationship, in a relationship. Otherwise, maximum work or maximum process in a relationship through a child object only. आप समझ में आ गया? चाइल्ड के थ्रू ही वर्क करेंगे। अभी मुझे मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, तो मास्टर रिलेशनशिप अपन किसके थ्रू लगाएंगे? चाइल्ड के थ्रू लगाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? हमने जैसे लुकअप रिलेशनशिप किया था ना, वैसे ही मास्टर रिलेशनशिप करना है। अब देखो यहाँ पे इसके रूल्स क्या रहते हैं, तो उस रूल्स को फॉलो करो।
अभी जो डायग्राम रहती है ना आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको ध्यान रखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। ओके, रूल्स फॉर मास्टर रिलेशनशिप। ओके, इसमें पहला रूल जो रहता है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रूल। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रूल क्या है, इट इज टाइटली बॉन्ड। रिलेशनशिप, इट इज टाइटली बॉन्ड रिलेशनशिप। समझ लगा, इट इज अ टाइटली बॉन्ड रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? इट इज टाइटली बॉन्ड रिलेशनशिप। कल मैंने आपको समझा के दिया था, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन, इसमें। इज इट क्लियर? इट इज टाइटली बॉन्ड। सेकंड, यहाँ पे देखिए, ओके, इफ एनी record available in child object, then master relationship never create। समझे क्या? इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ। इफ एनी रिकॉर्ड अवेलेबल इन द चाइल्ड फील्ड देन मास्टर रिलेशनशिप नेवर क्रिएटेड। अब मुझे यहाँ पे इसको बताता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, हम लोग करेंगे अभी। यहाँ यही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे करना है। इफ एनी रिकॉर्ड अवेलेबल इन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट देन मास्टर रिलेशनशिप नेवर क्रिएटेड, बट we create master relationship in this condition, then first form the lookup relationship and then form master relationship। ये प्रोसेस रहती है आप लोगों को। ओके, इज इट क्लियर? अभी हम लोग देखेंगे क्या रहेगा। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग, तो अभी अपन देखते हैं मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो अभी सबसे पहले देखो, मैंने कल यस्टरडे हम लोग सैटरडे के दिन हम लोगों ने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशनशिप करना है तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले आपको चूज़ द 2 ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट चूज़ किए, स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल। सेकंड, which one is the parent, which one is the child, staff detail is parent and child is the, ओके, ये 2 चीज़ें हमने कवर कर ली। तो अभी अपन रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग। तो मैंने आप लोगों को यस्टरडे हम लोगों ने आपको एक चीज़ बताई थी, उसको फॉलो किया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं किया होगा तो आपका लुकआउट है। मैंने आपको बताया था कि स्टाफ में 2 लोगों का रिकॉर्ड रखना है आपको। अरे यार शट, इसको मैंने बनाया नहीं यहाँ पे। ओके, तो मैं कोई और ये चालू कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, लॉगिन, और मैं कहीं और का रिलेशनशिप लगा देता हूँ प्लीज़।
वेट अ मिनट, एक्चुअली मैंने इसमें स्टाफ में कुछ दिया ही नहीं था ना, इसलिए ये देखो ऐसा होता है, हमने काम नहीं किया तो अपन रिलेशनशिप लगा ही नहीं सकते। चलो स्टाफ डिटेल है क्या यहाँ पे, स्टूडेंट डिटेल है क्या, बाप रे कुछ ज़्यादा है। चलिए स्टाफ डिटेल में मुझे कितने रिकॉर्ड्स रखने हैं, सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स रखने हैं, डिलीट कर देता हूँ। दो रिकॉर्ड्स रखते हैं, बाकी के रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं हम लोग। आप भी हमको मैंने आपको बताया था सभी लोगों को फॉलो करो आप लोग। ओके मैंने आपको बताया था स्टाफ में 2 रिकॉर्ड रखेंगे, स्टूडेंट में 5 रिकॉर्ड रखेंगे, एस मार्कशीट के अंदर 5 रिकॉर्ड्स रहेंगे और एस आपका स्टूडेंट एड्रेस के अंदर 5 रिकॉर्ड्स रखेंगे। ओके क्यों रखना है मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास, कितने रिकॉर्ड्स हैं, 17 रिकॉर्ड्स। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक जाइए आप लोग, मैं कवर अप करवा देता हूँ। ओके आपको पढ़ना है, ये कल से आपको यही पढ़ना है। ओके ये आपको पढ़ना है कल से। स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे अपन देखते हैं, मुझे थोड़ा सा वर्क करने दो। ओके कॉपी एक्सेल, कंट्रोल 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम दो। वेट अ मिनट, मैं एक साथ पूरा डेटा डिलीट कर रहा हूँ। इंसर्ट अकाउंट डिलीट, कल से अपने को यही पढ़ना है स्टूडेंट। इजी है, ऐसा कुछ टेंशन लेने लायक नहीं है।
वेट अ मिनट, ऐसा है ना, इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग अपना वर्क करके रखिएगा, नहीं तो ये ऐसे तकलीफ जाती है, मालूम है। ये ऐसा होता है कभी कभी। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। देखिए अब हम सब तैयार रहते ना हमारा, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। म्यूट करो यार, कौन है ये मुझे सब करना पड़ रहा है। सर मैं प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूँ। ये सब पढ़ना है अपने को के, कल से अपना यही टॉपिक है। कॉपी वेट अ मिनट। ये हमको करना है कल से, टेंशन नहीं। सर ये एडमिन का पोर्शन है कि डेवलपर का पोर्शन? एडमिन जो भी एडमिन आप एडमिन पोर्शन। एडमिन। अभी नेक्स्ट ही टॉपिक है, कल से ही पढ़ना है अपने को ये टॉपिक। ओके, सिखाऊंगा ना मैं आपको, कल से ही सीखना है आपको। ओके, चलो हो गया, वेरी गुड। देखिए चलो, रह गए ना 5 ही रिकॉर्ड, 4 ही रिकॉर्ड रह गए। यस, 1 2 3 4। अभी और एक रिकॉर्ड बना देंगे हम लोग। यहाँ पे डिम्पल करके कोई लड़की है, मेरी सिस्टर का भी नाम डिम्पल है। चलिए सेलेक्ट, ओके, ये हो गया आपका। आई हैव द 5 रिकॉर्ड्स। ये रखना, नहीं तो आपको तकलीफ जाएंगी। देखो कितना टाइम चला गया मेरा। ओके, तो देखिए स्टाफ हैव द 2 रिकॉर्ड्स एंड द स्टूडेंट हैव द 5 रिकॉर्ड्स। ओके, वी स्टार्ट द प्रोसीजर फॉर द मास्टर रिलेशनशिप। ओके, मास्टर रिलेशनशिप के लिए अपने को प्रोसीजर करना है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आपको इसके भी पहले बताया था कि रिलेशनशिप अपन पेरेंट के थ्रू लगाएंगे कि चाइल्ड के थ्रू लगाएंगे। जस्ट टेल मी। चाइल्ड के थ्रू लगाएंगे। ओके, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट। हम लोग जो भी रिलेशनशिप लगाएंगे वो चाइल्ड के थ्रू ही लगाएंगे हम लोग। इज इट क्लियर? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सेटअप में जाएंगे। अगेन क्लिक ऑन द सेटअप। ओके, ऑब्जेक्ट मैनेजर, हु इज अ चाइल्ड, स्टूडेंट डिटेल इज अ चाइल्ड। ओके, इसके बीच में जाएंगे हम लोग, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाएंगे हम लोग, और उसके बाद न्यू पे जाते हैं हम लोग। न्यू पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं मास्टर रिलेशनशिप के ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? मास्टर रिलेशनशिप के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट। उसके बाद ये आपका स्टूडेंट डिटेल मेरा चाइल्ड है, मेरा पेरेंट कौन सा रहेगा बताइए? स्टाफ डिटेल। सो मुझे यहाँ लाना पड़ेगा स्टाफ डिटेल। नेक्स्ट, बाजू में क्लिक करेंगे हम लोग। ओके, ये चीज़ें बहुत काम की रहती है, ये पढ़ लीजिए आप लोग। ओके, ये देखो अलाउ रीपेरेंटिंग, इसके बाद का ही प्रोसीजर रहेगा आपका, मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, उसके बाद हमको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताना पड़ता है। ओके, दिस वन, नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट एंड सेव। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है उसने, देखिए लिसन हियर, वन रिमेंबर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है,
आप देखिए आप क्या लिखा है, यू कैनॉट क्रिएट अ मास्टर रिलेशनशिप ऑन ए एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ द रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट इफ़ यू फर्स्ट क्रिएट अ लुकअप रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज योर स्टाफ डिटेल इज योर चलिए, ये स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल। स्टाफ डिटेल मेरा पेरेंट है, स्टूडेंट डिटेल मेरा चाइल्ड है, ध्यान दीजिएगा। तो मास्टर रिलेशनशिप का रूल क्या होता है, जब स्टाफ डिटेल के अंदर रिकॉर्ड्स है, स्टूडेंट डिटेल के अंदर रिकॉर्ड्स है, ये पॉइंट्स कहीं तो भी लिख के रखो। ओके ओके, इफ़ द स्टाफ पेरेंट हैव सम रिकॉर्ड एंड चाइल्ड हैव सम रिकॉर्ड्स, तो दैट टाइम दे नेवर क्रिएट अ मास्टर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। जब पेरेंट के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, देखिए, और चाइल्ड के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, इज इट क्लियर, ऐसे वक्त अपन मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप लोग बाद में भूल जाते हैं, ये लिखा है, यू कैनॉट क्रिएट अ न्यू मास्टर रिलेशनशिप ऑन द एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ द रिकॉर्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझ में आ गया क्या आपको? ओके, द स्टाफ डिटेल इज अ पेरेंट ऑब्जेक्ट, दे हैव द 2 records. Student detail is your child object, they have the 5 records. Okay, if पहले से ही आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे इसके बीच में, स्टाफ और स्टूडेंट डिटेल के बीच में, और उसके बीच में जब मैं रिलेशनशिप लगाऊंगा मास्टर रिलेशनशिप, ऐसे वक्त मास्टर रिलेशनशिप नहीं लगता है। दिस इज योर एरर। यू कैनॉट क्रिएट अ न्यू मास्टर रिलेशनशिप ऑन द एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ द रिकॉर्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब समझ में आया क्या आपको? बताइए, जितने न्यू कमर्स है वो छोड़ के बाकी को सबको समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए मुझे। हाँ, यस सर। यस, ओके। अभी अपने को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, लेकिन मुझे तो भी रिलेशनशिप लगाना है, तो भी मुझे रिलेशनशिप लगाना है। किसके किसके बीच में? स्टाफ डिटेल के बीच में और स्टूडेंट डिटेल के बीच में मुझे रिलेशनशिप लगाना है। इज इट क्लियर? तो रूल क्या होता है इन मास्टर रिलेशनशिप, पहले से ही पेरेंट के अंदर रिकॉर्ड्स होंगे और चाइल्ड के अंदर रिकॉर्ड्स होंगे, तो ऐसे वक्त डायरेक्टली मास्टर रिलेशनशिप नहीं लगता है। लेकिन तो भी मुझे रिलेशनशिप लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? तो स्टेप्स देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया था, यही बोला था, इफ़ एनी रिकॉर्ड अवेलेबल इन द चाइल्ड ऑब्जेक्ट देन मास्टर रिलेशनशिप नेवर क्रिएटेड, वही बताया ना। लेकिन मुझे पहले से चाइल्ड के अंदर मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स होंगे, उसके बाद मास्टर रिलेशनशिप नहीं कनेक्ट होता है। बट वी क्रिएट अ मास्टर रिलेशनशिप इन दिस कंडीशन, देन फर्स्ट फॉर्म द लुकअप रिलेशनशिप एंड देन फॉर्म द मास्टर रिलेशनशिप। स्टाफ के अंदर पहले से रिकॉर्ड होगा, स्टूडेंट के अंदर पहले से रिकॉर्ड होगा, तो ऐसे वक्त मास्टर रिलेशनशिप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ता है? पहले लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो चलो अभी अपन वापस चालू करते हैं हम लोग रिलेशनशिप। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग। अभी मुझे क्या करना है? स्टूडेंट और स्टाफ डिटेल के बीच में मास्टर रिलेशनशिप लगाना है, बट पहले से रिकॉर्ड्स होने के कारण डायरेक्टली अपन रिलेशनशिप नहीं लगा सकते हैं। सो दैट्स वाई मैं न्यू पे जाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले लुकअप रिलेशनशिप लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। तो पहले हम लोग लुकअप रिलेशनशिप लगाएंगे, हम लोग लुकअप रिलेशनशिप लगाएंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद मेरा पेरेंट कौन सा रहेगा? स्टाफ डिटेल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सिस्टम एडिटर को बताएंगे हम लोग। नेक्स्ट, इसके बाद दिया हुआ है ये काम का नहीं फिलहाल, तो सेव इट। तो देखिए हमने क्या कर दिया, पहले लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट किया हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे देखना है आप लोगों को, तो नीचे जाइए आप लोग, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट स्टाफ डिटेल, देखो लुकअप रिलेशनशिप है मेरा, ये कौन सा है? चाइल्ड है, और ये स्टाफ मेरा कौन सा है? पेरेंट है। तो इसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट हुआ आपका? बताइए। लुकअप रिलेशन, चलिए लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, इसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट हो गया आपका? लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बता। ओके, अभी मुझे इसको क्या करना है? अभी लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, इसका मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट हुए।
लेकिन अभी तक लुकअप रिलेशनशिप कनेक्ट करने के लिए अपने पास दो ऑपरेशन रहते हैं। एक तो अपन कनेक्शन क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्टाफ का डेटा अपन पेरेंट के चाइल्ड के अंदर पॉपअप करते हैं। याद है क्या आप लोग, याद है क्या? ओके, तो यहाँ पे देखिए अपन डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ये देखो ऑल कर देते हैं हम लोग, इसको ऑल करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ओके, और यहाँ पे अपन जाएंगे, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसके बाद हम लोग ये स्टाफ को ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जो काम करे उसको निकाल देंगे। क्या भाई, तो सेव इट। चलिए, यहाँ पे आ गया, आपका दिख रहा है आप लोगों को ये? ओके, कितने लोगों का रिकॉर्ड है यहाँ पे? यहाँ पे 6 लोगों का रिकॉर्ड है। ओके, डिलीट, यस। चलिए, 5 लोगों का रिकॉर्ड है आपका। अभी अपने को क्या किया, अपन ने लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट किया, किसके बीच में? स्टाफ डिटेल के बीच में और स्टूडेंट डिटेल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया। अभी मुझे क्या करना है, स्टाफ डिटेल का ये जो डेटा है ना, यहाँ पे ये 2 लोगों का डेटा है। कौन कौन है यहाँ पे देख लेते हैं, ऑल करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 लोगों का रिकॉर्ड है, एक विजेता और कोमल है। ये 2 लेक्चरर है, समझ लीजिए। ये 2 लेक्चरर को हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट डिटेल के अंदर ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसके साथ अपन ऐड करते हैं। इनके साथ हम लोग ऐड करते हैं, 5 लोगों के साथ ऐड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टाफ में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 001 कोमल में। तो 3 जनों को 001 दे देते हैं हम लोग, और 2 लोगों को 003 मतलब विजेता मैम दे देते हैं हम लोग। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? तो अभी अपना लुकअप रिलेशनशिप टोटल क्रिएट हुआ है। समझे कि नहीं समझे, मुझे बताओ। हेलो, ओके, तो हमने रिलेशनशिप इस तरह से क्रिएट किया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे इस तरह से हम लोगों ने रिलेशनशिप क्रिएट किया। आप लोगों ने कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट किया हम लोगों ने? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट किया। इतना क्लियर हो गया आपको? अभी मेरा लुकअप रिलेशनशिप में 2 पॉइंट्स होते हैं। पहले तो हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप में जाके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट का रिकॉर्ड अपन चाइल्ड में डालते हैं, और उसकी तरह से आपका पूरा लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मास्टर रिलेशनशिप में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मास्टर रिलेशनशिप में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मास्टर रिलेशनशिप में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग मास्टर रिलेशनशिप में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अपन जाते हैं यहाँ पे। तो मास्टर रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए आपको, ये देखो लुकअप रिलेशनशिप है आपका, देखिए दिख रहा है आपको। तो कभी भी देखिए, चाइल्ड के अंदर पहले से ऑब्जेक्ट होंगे, स्टाफ के अंदर पहले, पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से रिकॉर्ड्स होंगे। तो ऐसे वो क्या करते हैं, अपन डायरेक्ट मास्टर रिलेशनशिप नहीं लगाते, तो पहले अपन दोनों के बीच में लुकअप रिलेशनशिप लगाते, उसके बाद मास्टर रिलेशनशिप लगाते। तो अभी अपन ने लुकअप रिलेशनशिप लगा दिया स्टूडेंट डिटेल के अंदर और स्टाफ डिटेल के अंदर। देखो अब इसको मुझे मास्टर में कन्वर्ट करना, तो यू क्लिक ऑन हियर, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, एडिट में जाएंगे हम लोग, उसके बाद चेंज फील्ड टाइप में जाएंगे हम लोग, और उसके बाद मास्टर रिलेशनशिप में जाएंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे हम लोग। ओके, और उसके बाद इसको अपन नेक्स्ट करेंगे, इसको एंड नेक्स्ट वन एंड सेव इट। अभी देखो आप क्या होता है, अभी ऑटोमेटिकली मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। देखिए चेक करना है आप लोगों को, मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। इज इट क्लियर? अब समझा क्या कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं अपन मास्टर रिलेशनशिप? तो डायरेक्टली होता है क्या, इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको, यस? अरे ऑल ऑफ यू, नो सर, लुकअप थ्रू चैप्टर। यस सर। ओके, लुकअप के थ्रू हम लोग वर्किंग करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो पहले लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और उसके बाद मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। इतना क्लियर हुआ क्या? अभी मुझे बताइए, समझ में आ रहा है आपको? अभी हम लोग देखिए क्या होता है, तो लिसन यहाँ पे, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे अपन एक रिकॉर्ड देते हैं। अब इसको टाइटली बाउंड क्यों बोला जाता है तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये रूल्स है ना अभी इसके, हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ टाइटली बाउंड रिलेशनशिप। अब टाइटली बाउंड रिलेशनशिप रहेगा तो अभी अपन एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक z नाम का एक फर्स्ट नेम ले लेंगे इसको, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, इसको लास्ट में, सबसे लास्ट में दिया होगा यहाँ पे आया होगा, लिसन स्टाफ डिटेल। देखो स्टार दिखा हुआ है, स्टार लिख रहा है क्या? यस सर। तो अभी क्या होता है टाइटली बॉन्ड में, आपको क्या होता है कि आपको कंपलसरी, जब ये अभी देखिए स्टूडेंट डिटेल और स्टाफ डिटेल के बीच में मास्टर रिलेशनशिप लग गया, ओके। स्टाफ डिटेल मेरा पेरेंट है, स्टूडेंट डिटेल मेरा चाइल्ड है, ये देखिए इसके बीच में रिलेशनशिप लग गया। कौन सा रिलेशनशिप लग गया? मास्टर रिलेशनशिप लग गया। तो ये क्या होता है, इसमें आपको कोई भी चाइल्ड रिकॉर्ड अभी बनाएंगे तो उसमें मास्टर का रहना कंपलसरी होता ही है, रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इसको टाइटली बॉन्ड बोलते हैं। अभी दोनों के स्टाफ डिटेल और पेरेंट स्टूडेंट डिटेल के बीच में रिलेशनशिप, तो मास्टर रिलेशनशिप लग गया। तो अभी जो भी चाइल्ड का रिकॉर्ड बनाएंगे अपन, उसके अंदर पेरेंट का रिकॉर्ड रहेगा ही, क्योंकि वो टाइटली बॉन्ड रहता है। समझ में आ गया आपको? तो मुझे ये देना ही है। लुकअप रिलेशनशिप में वैसा नहीं रहता है, हम लोग दे देंगे 001, सेव कर देंगे हम। समझे क्या आपको? क्लियर हो गया आपको? अभी मैं क्या कर देता हूँ, स्टूडेंट डिटेल में जाता हूँ और एक न्यू क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे न्यू क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे y दे देता हूँ, ओके, दे देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। वो सेव होगा ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के बीच में अपन ने एक रिलेशनशिप लगाया हुआ है, एंड दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड द मास्टर रिलेशनशिप, एंड मास्टर रिलेशनशिप इज अ टाइटली बॉन्ड। सो आफ्टर दे आर कनेक्टेड बिटवीन द मास्टर रिलेशनशिप, उसके बाद चाइल्ड रिकॉर्ड बनेगा तब उसमें मास्टर का रिकॉर्ड डालना ही पड़ता है, मतलब पेरेंट का रिकॉर्ड डालना ही पड़ता है। देखो ये चाइल्ड है ना, इसके अंदर मास्टर का रिकॉर्ड डालना ही, मतलब पेरेंट का रिकॉर्ड डालना ही पड़ता है, नहीं तब तक वो सेव करता ही नहीं। लुकअप में ऐसा नहीं होता था। लुकअप में क्या करेंगे, अपन ने किस के बीच में रिलेशनशिप लगाया था, याद है क्या अपन ने? हम लोगों ने लगाया था मार्कशीट और मार्कशीट और अपन ने स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट डिटेल और मार्कशीट के बीच में रिलेशनशिप लगाया था कि नहीं? तो ऐसे वक्त क्या होता है यहाँ पे कि उस वक्त अपन क्या करेंगे, लुकअप में हम लोग जो आपका चाइल्ड है, कौन सा चाइल्ड है आपका एस मार्कशीट चाइल्ड था, तो उसके थ्रू आप लोग पेरेंट को ज्वाइन करो मत करो चलता है लुकअप रिलेशन में, क्योंकि वो लूजली बॉन्ड है, समझ में। लेकिन टाइटली बॉन्ड में क्या होता है, जब भी मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट होगा स्टाफ और स्टूडेंट के बीच में और हम लोग चाइल्ड का रिकॉर्ड डालेंगे, तो उस वक्त मुझे पेरेंट का रिकॉर्ड चाइल्ड के अंदर लगाना ही पड़ता है, तभी जाके रिलेशनशिप क्रिएट होती है। तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड सेव होगा ही नहीं, करो ट्राई, नहीं होगा, एरर देगा, इसलिए मुझे उसको रिलेशनशिप लगाना ही पड़ेगा। अब समझ में आ गया आपको टाइटली बॉन्ड क्यों बोलते हैं तो हम लोग? यस, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, ओके, यस सर। यस। अभी मुझे बताए, हाँ बोलिए सर। इसमें से ज्यादा कंपलसरी कौन सा रहता है सर? जैसे ऐसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है। कंपनी में कैसा होता है वो बताया जाता है कि भाई मुझे इसमें मास्टर रिलेशनशिप लगाना है, तो आपको मास्टर रिलेशनशिप लगाओ। वो बोलते हैं कि यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप, ऐसा बोला ही जाता है आपके को, अपने मन से नहीं लगाना पड़ता है। कंपनी में आपको लिख के आता है कि दिस टू ऑब्जेक्ट दे आर कनेक्टेड इन मास्टर, तो मुझे मास्टर में लगाना पड़ता है। ये चाइल्ड है तो चाइल्ड में लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? हाँ। इतना क्लियर हुआ क्या सभी को? दोनों को क्लियर हो गया सभी को? ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब किसी ने पूछा कि पेरेंट के थ्रू हमें पेरेंट का रिकॉर्ड डालेंगे तो क्या होगा। अब मुझे एक पेरेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है, इज इट क्लियर? तो मुझे चाइल्ड का रिलेशन लगाना पड़ता है। तो कभी भी याद रखना, इन रिलेशनशिप चाइल्ड का रिकॉर्ड डालेंगे तो पेरेंट का रिकॉर्ड कंपलसरी होता है। लेकिन अभी मैं नया पेरेंट का रिकॉर्ड बनाऊंगा यहाँ पे न्यू, ओके। ये न्यू रिकॉर्ड बनाता हूँ। यहाँ पे देखो प्रीति कारमोरे ये बनाएंगे हम लोग। और अभी इसको मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे सेव करता हूँ। तो कहीं चाइल्ड का आया क्या? यहाँ पे कुछ चाइल्ड का दिख रहा है आपको? कुछ स्टूडेंट डिटेल का कुछ दिख रहा है क्या? ऑपरेशन कोई डेटा फील्ड दिख रहा है? नहीं, याद रखना है। चलो देखो, इसका मतलब क्लियर हुआ कि आपको? मुझे क्लियर करो आप लोग। हम लोग मास्टर रिलेशनशिप में या लुकअप रिलेशनशिप में जब भी अपन पेरेंट के थ्रू ऑपरेशन करेंगे तब चाइल्ड का कनेक्शन कुछ भी जगह पे नहीं रहता है।
इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताओ। यस Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ें इंटरव्यू में पूछा जाता है। और क्या होता है, आप लोग वो इंटरनेट के थ्रू बहुत पढ़ते हो, बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। वो सिनेरियो म्यूट करो, सिनेरियो घुमा के पूछेगा ना आप लोगों को, सिनेरियो घुमा के पूछेगा ना, तो इस तरह से ही पूछेगा आप लोगों को, याद रखिएगा। लेकिन अपने को बेसिक चीज़, अपन वीडियो देखते नहीं अपने वाले, और इंटरनेट की वीडियो देखते रहते हैं, उनके क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। बेसिक यही चीज़ें रहता है। क्लियर हो गया आपको? तो आपका मास्टर रिलेशनशिप क्या रहेगा, आपका टाइटली बॉन्ड रहेगा। तो टाइटली बॉन्ड में क्या होता है, हम लोग जब चाइल्ड का रिकॉर्ड वर्किंग करेंगे तब पेरेंट का रिकॉर्ड उसको अटैच करना ही पड़ता है। लेकिन जब पेरेंट का रिकॉर्ड प्रोसेस करेंगे तब चाइल्ड का मुझे कोई ज़रूरत नहीं रहती है। समझ में आ गया कि आपको? क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. क्या है यार, Yes, sir. हेलो, कौन बोलते हैं? हाँ, अरे शिव, मेरा क्लास चालू है, मैं कॉल करता हूँ। हेलो, तो यहाँ पे देखिए, समझ में आ गया आपको? हेलो, Yes, अरे यार yes, sir. रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो मुझे, मैं कैसे समझाऊंगा यार आप Yes, लोगों sir. को? आप मैं पूछने के बाद भी आप लोग रिप्लाई नहीं देते, मुझे कैसे बैच स्लो हो जाती है ना आपकी। तो देखिए, स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के बीच में देखिए, क्लियर हो गया क्या आपको? समझ में आ रहा है आपको रिलेशनशिप क्या होती है? तो इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब इसको Yes. टाइटली बॉन्ड क्यों बोलते हैं? तो देखिए, दूसरा पहला पॉइंट, 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इट इज टाइटली बॉन्ड। टाइटली बॉन्ड में पहला रूल क्या होता है, अपन चाइल्ड का रिकॉर्ड बनाएंगे तब पेरेंट का रिकॉर्ड कंपलसरी देना पड़ता है। विदाउट पेरेंट रिकॉर्ड चाइल्ड रिकॉर्ड नेवर क्रिएटेड। ओके, सिंपल। दूसरा रूल ये होता है कि सपोज आई क्रिएट वन, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे बता देते हैं हम लोग कि हम लोग एक स्टाफ डिटेल में एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देते हैं हम लोग, और उसके बाद ये चाइल्ड का रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। इसके 2 चॉइस अभी देखा ना अपन ने, वहाँ पे क्या, कौन सी मैम है, 001 वाली, क्या नाम है उसका, देखिए ध्यान दीजिएगा। श्वेता मैम। श्वेता आएगी, देखते हैं 001 कौन है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे आपको दिख रहे कोमल मैम है। ये कोमल मैम को कितने पेरेंट्स से चेक करना है, कितने चाइल्ड से चेक करना है कि इसमें जाइए। और हमेशा याद रखिएगा, मैंने कल पढ़ाया था, वो लास्ट इसमें पढ़ाया था, क्योंकि पेरेंट के थ्रू मुझे उसके चाइल्ड देखना है तो रिलेशन में जाना पड़ता है। तो रिलेशन में जाएंगे तो अपने को दिख जाएगा यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स है, बताओ। यहाँ पे उसके 5 चाइल्ड्स दिख रहा है क्या आपको? मतलब 5 स्टूडेंट्स उसके साथ कनेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो वही मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक क्या है, आपका स्टाफ डिटेल का एक रिकॉर्ड है कोमल मैम का। उसके साथ कितने लोग कनेक्ट है? यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि उसके साथ हमारे पास 5 स्टूडेंट कनेक्ट है, 5 स्टूडेंट रिकॉर्ड कनेक्ट है यहाँ पे। इज इट क्लियर? सपोज मैंने क्या किया, पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट होंगे टाइटली बॉन्ड में। समझ में आ रहा है क्या आपको? लुकअप रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता था, लुकअप रिलेशनशिप लूजली बॉन्ड था। इफ यू डिलीट द पेरेंट रिकॉर्ड, चाइल्ड रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज ऑफ लुकअप रिलेशनशिप इज अ लूजली बॉन्ड, बट मास्टर रिलेशनशिप इज अ टाइटली बॉन्ड। इफ यू डिलीट द पेरेंट रिकॉर्ड, ऑटोमेटिकली चाइल्ड रिकॉर्ड कैन बी डिलीटेड। तो मैंने क्या किया, सपोज मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज्यूम करते हैं, सपोज मैंने ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, मैं करूँगा नहीं अभी। ओके, सपोज मैंने ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया कोमल मैम का। ओके, तो कोमल मैम का रिकॉर्ड मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ध्यान दिया, डिलीट कर दूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड जितने भी चाइल्ड है, इसके रिलेटेड जितने भी 5 चाइल्ड थे, ओके, ये 00, ये 1 2 3 4 5, ये चाइल्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे आपके, बताओ क्या हो जाएंगे? Delete. डिलीट हो Delete. जाएंगे। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपके डिलीट हो जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। समझ में आ रहा है Yes, sir. आपको? ओके, यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग एज्यूम करते हैं, हम लोग तो इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताइए। अभी हम लोग एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, बता भी देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे न्यू पे जाते हैं हम लोग, XXX रिकॉर्ड दे देंगे हम लोग, और इसको अपन कनेक्ट कर देंगे हम लोग स्टाफ डिटेल के साथ। 00 किसके साथ कनेक्ट करेंगे? 007 के साथ, प्रीति कारमोर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, सेव कर देंगे। चलिए, ये देखो, ये चाइल्ड है XXX नाम का, उसका पेरेंट कौन है, नीचे दिया होगा, देखो दिख रहा है आपको? जाओ यहाँ क्लिक करो, यहाँ आ जाएगा आपका प्रीति करके, कारमोरे करके है। समझ में आ रहा है? और पेरेंट के थ्रू चाइल्ड में देखना है तो रिलेटेड में जाना पड़ता है आपको।
ये देखो आ गया आपका। अभी मुझे क्या करना है ध्यान दीजिएगा। सपोज मैं पेरेंट में जाता हूँ और पेरेंट में जाके हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हॉल पे जाता हूँ और मैं अभी क्या करता हूँ, प्रीति कारमोरे का रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ। प्रीति कारमोरे का रिकॉर्ड डिलीट करूँगा तो स्टूडेंट डिटेल का भी एक रिकॉर्ड क्रिएट है XXX, देखिए यहाँ पे दिख रहा है XXX, और इसको कौन कनेक्ट है, प्रीति कारमोरे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे प्रीति कारमोरे का, तो ऑटोमेटिकली देखो चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है ड्यू टू टाइटली बॉन्ड। ये रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं, कौन से, प्रीति कारमोरे का रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। देखिए कर दे डिलीट, मैंने हो गया डिलीट। तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे चला गया वाई का भी XXX रिकॉर्ड चला गया, क्या दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब क्लियर हो गया आपको। टाइटली बॉन्ड में अपने दो चीज़ें रहती है। फर्स्ट चीज़, हम लोग जब चाइल्ड रिकॉर्ड बनेंगे तो पेरेंट रिकॉर्ड मुझे वहाँ पे डालना ही पड़ता है टाइटली बॉन्ड में। दूसरा, इफ़ यू डिलीट द पेरेंट रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड रिकॉर्ड कैन बी डिलीटेड। तो ये हो गया आपका मास्टर रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको? ओके। यस सर। तो अब